you are supposed to plot a graph of this function with time. And if I am not mistaken, years back, maybe 20-25 years back, there was a question in IIT JEE. ये कैपेसिटर सिस्टम में जो इनिशियल एनर्जी थी वो इतनी थी, जब आपने ऐसे जोड़ दिया, स्टेडी स्टेट आ गया, hello students, today we will do 3 questions on RC circuit, and all questions require very shrewd observation power. You must observe the given situation very carefully and you will be able to answer the questions. Here is your first question. This is a simple RC circuit. A capacitor is going to be charged using a battery of EMF V volt. There is a resistance in the circuit. Switch is closed at time t is equal to 0, and you have to plot a rough graph, a rough sketch. Graph is power absorbed by the capacitor versus time. At time t is equal to 0, the switch is closed, and you have to plot a rough sketch of how the power absorbed by the capacitor changes with time. Pause the video, do the solution. Very simple. Students, this is a rather easy question. You all know that after the switch is closed, the charge on the capacitor varies with time according to an equation of this form. Q0 is the final maximum charge and tau is the time constant. And the current in the circuit, that means rate at which charge is flowing to capacitor, current dq by dt, varies according to an equation of this form. You can just differentiate the first one with respect to time, and this is how the current in the circuit changes. Now, what is the question asking? Power absorbed by the capacitor. At any point in time, at any time t, the charge on the capacitor is Q, and energy stored in the capacitor is Q square by 2C. So, power is nothing but rate at which this energy absorbed is changing with time. Capacitor is having an energy E at any time t, and the rate at which the energy stored in the capacitor is changing with time. That is what is power, power absorbed by the capacitor. As the charge grows, energy in the capacitor grows. So, the rate at which the energy changes is the power. So, you just differentiate this and you get 1 by 2C 2Q dq by dt. So, this is 1 upon C into Q into dq by dt. dq by dt is nothing but current. I guess many of you have reached this stage of solution. I am assuming that most of you will be able to reach this stage of solution. Now, Q varies according to an equation of this nature, and current in this circuit varies according to an equation of this nature. So, it is basically some constant k into e raised to the power minus t by tau 1 minus e raised to the power minus t by tau. So, you are supposed to plot a graph of this function with time, and if I am not mistaken, years back, maybe 20-25 years back, there was a question in IIT JEE which required you to plot a graph of this function. If I could recall it correctly, it was some question in LR circuit, but it required you to plot a graph of this kind of function. What will the graph look like? अभी भी आप अगर ध्यान से कुछ सोचना चाहते हैं तो सोच लीजिए. मैथमेटिक्स आप लोग बहुत जानते हैं, कर लेंगे. इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? दिस पावर. हम सिंपल ऐसे इंट्यूशन से काम कर सकते हैं. जब टाइम जीरो है, उस समय ये 1 - 1 ये 0 हो गया.
बेसिकली ये 0 है। जब टाइम जस्ट 0.000000001 सेकेंड ऐसा सोच लो भाई, so at that instant this expression will be 0 because this is 0. This is of course very large, but this is 0. So at time 0 it is 0. Yes, at time t is equal to 0, actually the power is something which varies with product of q and I. So at time t is equal to 0, though there is a current in the circuit, but the charge on the capacitor right now is 0. So the power is 0. After a long time, this will tend to 0. So this will become 1, but this is tending to 0. So after a long time, this actually the current is going to 0. Therefore power absorbed is going to 0. आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट अगर आप यहाँ से देखें कि टाइम 0 पे Q 0 है इसलिए पावर 0 है, टाइम इन्फिनिटी पे करंट 0 है इसलिए पावर 0 है। तो टाइम 0 पे भी 0 है और इन्फिनिटी पे भी 0 है, पर बीच में तो 0 नहीं है। टाइम 1 मिली सेकेंड पे ये एक्सप्रेशन 0 तो नहीं है, इसका कोई ना कोई वैल्यू तो है, पॉजिटिव नंबर। देयरफॉर दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस। दैट मीन्स अभी 0 है, कुछ बढ़ा पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, और उसके बाद इसको डिक्रीज होना ही पड़ेगा बिकॉज एट इन्फिनिटी इट इज अगेन गोइंग टू बी 0. So this is how the graph will look like. Just by intuition we can say that the graph has to be like this, somewhat like this. Okay, this was a very easy question. This is your next question, and it requires a very astute observation power. If you just do mathematics, the solution may get very long. Listen to the question carefully, you will be able to do it. This is a circuit, as you can see. There is a 3-volt battery, there is a 4-volt battery, there is 1 ohm resistance, there is 1 ohm resistance, there is 2 microfarad capacitor. And now this is a two-way switch, this yellow colored switch. It can be moved from 1 to 2 to 1, 1 to 2 to 1. It's like this. So initially the circuit is like this. This capacitor is charged using a 3-volt cell. Now this switch is quickly moved to position 2. Switch is quickly moved to position 2. It is kept in contact for a very small time delta t, very small time, very small time. The switch is just moved to position 2. It is kept in contact for a very small time, and it is again moved back to 1. Again it is held in contact for a very small time, again moved to 2. Again it is held in contact for a very small time, again moved to 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. This is what is being done. After a long time, after large number of shuffling between point 1 and 2, the capacitor more or less will acquire a constant charge. After a long time, after so many contacts, the capacitor will more or less acquire a constant charge. That charge will be close to, the value of final charge on the capacitor will be close to 7 microcoulomb, 6.2 microcoulomb, 6.8 microcoulomb or 8 microcoulomb. That is the question. So pause the video, think for a moment and see if you can do it. Students, as I am repeatedly saying that questions are more or less based on observation power. So just by observation you can say that after a long time the potential difference across the capacitor will become 3.5 volt. 3.5 volt, and this will be the answer. How do I know that? Suppose we have made so many contacts and this capacitor is having some charge Q, right? I am saying that the capacitor will more or less get constant charge when its potential difference becomes 3.5 volt. After a large number of contacts, its potential difference will become 3.5 volt. Why I am saying so? Because assume that the capacitor has a potential difference of 3.5 volt. Now you put it in contact, you put the switch in contact with position 1. आपने switch को ऐसा रख दिया.
what is happening now? This is having a potential difference of 3.5 volt. This is 3 volt. So in this loop instantaneously मैं बात कर रहा हूं, अभी ये 3.5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, तो देखो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. बेसिकली यहां से यहां आने पे 3.5 वोल्ट का गेन है. उल्टा बोलूं तो यहां से यहां जाने पे 3.5 वोल्ट का ड्रॉप है. ये 3 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो यहाँ हाफ वोल्ट का ड्रॉप होगा इमीडिएटली. जैसे ही आप स्विच को पोजीशन 1 पे लेके आए, यहाँ पे 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ जो करंट होगा इट विल बी 0.5 वोल्ट बाय 1 ओम. जैसे ही इस स्विच को यहाँ रखोगे, व्हाट इज करंट हियर? Assuming that this potential difference is 3.5 volt, what is current here? Current is simply 0.5 volt by 1 ohm, 0.5 ampere. That is the current. Are you getting my point? This is 3.5 volt and this is 3 volt. So for this resistance, the potential difference is only 0.5 volt, and therefore there will be a current in the circuit like this. It will be 0.5 ampere current. So that this is 0.5 volt. So if you keep the switch in contact with one for a small time delta t, how much charge this capacitor will lose? This capacitor will lose a charge which will be equal to I into delta t. I is 0.5 ampere into delta t. We are saying that the time interval delta t is very small, so capacitor is going to lose a very small amount of charge. Its potential difference between the plates is not going to change much. ठीक है, 3.5 से 3.499999 हो गया, but that is a very small amount. जैसे ही आपने स्विच को यहां रखा, करंट इज 0.5 एम्पियर, डेल्टा टी सेकेंड में, दिस इज द चार्ज दैट विल फ्लो एंड दिस इज द चार्ज दैट कैपेसिटर विल लूज. अब आपने स्विच को तुरंत 0.2 पे कर दिया. अब आप देखिए क्या जादू हो रहा है. कैपेसिटर ने थोड़ा सा डेल्टा क्यू चार्ज लूज किया है. जैसे ही आप इसको 2 पे करोगे, अब क्या होगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3.5 से थोड़ा कम हुआ है, 3.499999. ठीक है, उसको 3.5 बोल सकते हैं. अब ये 4 वोल्ट है और ये 3.5 वोल्ट. अब आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है. यहां पे करंट ऐसा फ्लो करेगा, ऐसा. क्यों? क्योंकि अभी भी यहां से यहां जाने पे गेन है 3.5 वोल्ट का. उल्टा बोलूं तो यहां से यहां जाने पे ड्रॉप है 3.5 वोल्ट का ड्रॉप. यहां से यहां जाने पे 4 वोल्ट का ड्रॉप है, तो यहां से यहां जाने पे गेन होना चाहिए 0.5 वोल्ट का. तो ये जो करंट है ये 0.5 एम्पियर ऐसा होगा, 0.5 एम्पियर इंटू 1 ओम 0.5 वोल्ट. तो अभी सर्किट में करंट ऐसा है, दैट मीन्स कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड. ये पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. तो जब मैंने इसको यहां रखा था, पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकला, पॉजिटिव चार्ज निकला, चार्ज थोड़ा सा कम हुआ, पर इतना कम नहीं हुआ कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर को बहुत डिफरेंट मान लूं. ठीक है, वो 3.5 के आसपास ही है. अब जैसे ही इसको यहां पे रखा, नाउ द कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड. ये पावरफुल बैटरी. तो अगले डेल्टा टी सेकेंड में ये कैपेसिटर बिल्कुल इतना ही चार्ज अक्वायर कर लेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू तो वही है 0.5. तो डेल्टा टी सेकेंड में जो चार्ज कैपेसिटर पे फ्लो करेगा, सर्किट में जो चार्ज फ्लो होगा, वो करंट इंटू टाइम 0.5 इंटू डेल्टा टी. तो यहां रखने पे जितना लूज किया, यहां रखने पे उतना ही गेन कर लिया. वापस यहां ले जाओगे, फिर थोड़ा डेल्टा क्यू लूज किया, फिर यहां गए डेल्टा क्यू गेन कर लिया. तो उसका जो चार्ज है वो बदल नहीं रहा है, मोर और लेस. वो कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं? तो हमने 3.5 कैसे गेस किया? अगर 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि ये 3.6 क्यों नहीं हो सकता है. अगर इसको 3.6 मान लेंगे, 3.6 मान लेंगे, तो जब इसको पोजीशन 1 में रखेंगे तो यहाँ 0.6 एम्पियर करंट हो जाएगा. ये 3 वोल्ट है, 3.6 है, तो 0.6 एम्पियर. तो जो लॉस होगा वो 0.6 इंटू डेल्टा टी होगा. और जब इसको वापस यहाँ लेके आएंगे, इसको अभी भी 3.6 मान लें, तो डिफरेंस 0.4 का है, करंट सिर्फ 0.4 होगा. तो जो चार्ज वापस आएगा वो 0.4 इंटू डेल्टा टी आएगा. लूज किया 0.6 डेल्टा टी, वापस रिगेन किया 0.4 डेल्टा टी, तो चार्ज कैपेसिटर की तो बदल गई? नहीं बदल गई. लेकिन अगर ये 3.5 है तो चार्ज कांस्टेंट ही बना रहेगा.
क्योंकि इस कांटेक्ट में जितना वो लूज करता है इस कांटेक्ट में उतना ही गेन कर लेता है। तो द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल बी 3.5 वोल्ट, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, सो चार्ज विल बी कांस्टेंट एट 7 माइक्रोकूलम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी ने देखा है लेकिन फिर भी देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। ये 3 कैपेसिटर हैं, सभी का कैपेसिटेंस C है, सभी का कैपेसिटेंस C है, ऑल ऑफ देम हैव सेम कैपेसिटेंस C। इनको सीरीज में एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। A, B, C, D आर नेम ऑफ द पॉइंट्स। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस इज C, दिस इज D। सो 3 कैपेसिटर, आइडेंटिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C 20 वोल्ट की बैटरी से सीरीज में चार्ज कर दिए गए। उसके बाद समहाउ कैसे किया गया इसकी चिंता नहीं करनी, समहाउ बैटरी को हटा दिया गया और बैटरी को हटा के 2 इक्वल रेजिस्टेंसेज आर इस तरीके से कनेक्ट कर दिए गए। बैटरी को हटाने के बाद कैपेसिटर पे चार्ज है, बैटरी को हटा दिया गया और 2 इक्वल रेजिस्टेंसेज को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया जैसा अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है। आफ्टर दिस कनेक्शन इज मेड, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी डिसिपेटेड इन दिस सर्किट? हाउ मच हीट विल बी डिसिपेटेड इन दिस सर्किट आफ्टर दिस कनेक्शन इज मेड? That is the question. Pause the video, give it a try. बच्चों ये सभी जानते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3 हो गया, इसलिए इन सभी कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो C/3 भी होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे जो चार्ज है सीरीज में हर कैपेसिटर पे वही चार्ज होता है। इस समय इस कैपेसिटर सिस्टम के पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हम लिख सकते हैं हाफ C/3 V²। किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है उसमें स्टोर्ड एनर्जी लिख दीजिए, वही सभी कैपेसिटर में मिला जुलाकर स्टोर्ड एनर्जी होती है। तीनों में स्टोर्ड एनर्जी को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। C/3 इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हाफ C equivalent into V², that is the energy stored in the capacitor system initially। अब आप जैसे ही इनको बेसिकली आपने तीनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। आई होप कि सभी बच्चे समझते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि ये तीनों कैपेसिटर यहाँ पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए हैं और जो पाथ है उनमें कुछ रेजिस्टेंसेस भी हैं। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होते तो आप सभी जानते हैं कि A और D के बीच में ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं। अगर नहीं जानते तो एक बार कोई सी भी बुक आपके पास जो भी बुक होगी उसको उठा के पढ़िए, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, ये 3 कैपेसिटर अगर ऐसे बंधे हैं तो ये तीनों पैरेलल में होते हैं। तो आपने तीनों कैपेसिटर को उठा के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। बातचीत में आसानी के लिए मैं प्लेट्स के नंबर लिख देता हूँ। प्लेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे इस डायग्राम में प्लेट 1 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है, 3 पॉजिटिव, 4 निगेटिव, 5 पॉजिटिव, 6 निगेटिव। इस कनेक्शन के बाद फाइनली जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा, जो भी चार्ज इधर उधर जाना है चला गया, उसके बाद जो सिचुएशन बनेगी, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं और A और D के बीच में प्लेट 1, 4 और 5 एक साथ कनेक्टेड है। देखिए, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। प्लेट 1, 4 और 5 एक साथ जुड़े हुए हैं। 1, 4, 5 एक साथ जुड़े हुए हैं। प्लेट नंबर 2, 3, प्लेट नंबर 2, 3 और 6 एक साथ जुड़े हुए हैं। 2, 3, 6 एक साथ जुड़े हुए हैं। राइट? आपने ऐसा ही किया है। अब ध्यान से देखो, 1 पे प्लस क्यू चार्ज था, 1 पे प्लस क्यू चार्ज था, 4 पे माइनस क्यू चार्ज था और 5 पे प्लस क्यू चार्ज था। ध्यान से देखो, प्लस क्यू, 4 पे माइनस क्यू, 5 पे प्लस क्यू। तो ये जो तीनों प्लेट है इन पे मिला जुला के टोटल चार्ज क्यू था। उसी तरीके से इन 3 प्लेट पे मिला के टोटल चार्ज माइनस क्यू था। ये तीनों प्लेट पे टोटल चार्ज क्यू है और इन तीनों प्लेट पे टोटल चार्ज माइनस क्यू है। तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है और पैरेलल में जोड़ दिए गए हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है इस कैपेसिटर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो चार्ज अवेलेबल है वो तो क्यू है। तो इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? Q/3। तीनों ही कैपेसिटर्स के ऊपर Q/3 चार्ज हो जाएगा। पक्की बात है, कंफर्म। अब इस कैपेसिटर सिस्टम की जो एनर्जी है वो हम लिख सकते हैं फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी, एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हो गई Q/3 होल स्क्वायर बाई 2C और ऐसे ऐसे 3, विच मीन्स Q स्क्वायर बाई, एक 3 कैंसिल हो गया, 6C। देख लेना भाई, कैलकुलेशन देख लेना। Q स्क्वायर बाई 6C। नाउ व्हाट इज Q? Q किसको लिख रहे हैं हम? वी आर राइटिंग दिस नंबर एज Q, CV/3। तो ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप, तो ये बन जाएगा आपका C स्क्वायर, सॉरी CV स्क्वायर बाई, इसका स्क्वायर किया 9 और ये 9 6 जा 54। प्लीज कैलकुलेशन देख लीजिएगा, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। ये कैपेसिटर सिस्टम में जो इनिशियल एनर्जी थी वो इतनी थी। जब आपने ऐसे जोड़ दिया, स्टेडी स्टेट आ गया, तो तीनों ही कैपेसिटर पे Q/3 चार्ज है। अगर ओरिजिनल Q चार्ज था तो अब Q/3 चार्ज है। अब इस कैपेसिटर सिस्टम की टोटल एनर्जी इतनी है, पहले ज्यादा थी अब कम है। तो जो एनर्जी नहीं मिल रही है, गुम हो गई, वो कहां गई? वही तो हीट बन गई। तो हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट विल बी CV स्क्वायर बाई 6 माइनस CV स्क्वायर बाई 54। ये आंसर हो गया आपका 54। 9 माइनस 9 minus 1, 8 CV square. So there is 4 CV square by 27. There is the heat dissipated. I hope all of you have understood this. समझ गए तो थोड़ा वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ इस चैनल पे। हाँ, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय।